Hello everyone, let's start with the very first topic, basic concept of macroeconomics. So these are the topics which are very important from examination point of view as well as from numerical point of view, because this will help you a lot in solving the numerical questions. So we need to have very clear concept of these topics. So first of all, we'll going to cover this topic domestic territory in this video, and then we'll cover all these topics in upcoming videos. So let's start with domestic territory. So, domestic territory means the political frontier of a country. So, it means अगर किसी भी देश के राजनीतिक सीमाओं के अंदर जो भी एरिया आता है that would included in domestic territory of that country. For example, if you are taking the example of India, so this is the map of India. So, इस बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया आता है then that would included in domestic territory of India only. So, in addition to political frontier of a country, domestic territory also includes these 3 points. Okay. So, the very first point states that ships and aircraft owned and operated by normal resident between two or more countries. So, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर ships और aircraft owned होता है and operated by normal resident, so here between two countries, okay, तो वो उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया का कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट लाइक प्लेन ले ले, एयर इंडिया या इंडिगो ऑपरेटेड होता है रसिया में, बट दोज आर ओन्ड बाय इंडिया ओनली, सो दैट वुड ऑल्सो इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड सेम अप्लाइज टू Russian domestic territory. Like if Russian aeroplanes and aircraft are operated by them and operated in India, so that would include it in domestic territory of Russia. So the second point, fishing vessel, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by resident of a country in the international water where they have exclusive right of operation. So for example, ये है international body जो कि इंडियन ओशियन है, और अगर यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है लाइक फिशिंग हो गया, तो यहाँ पे ये सारी कोस्टल एरियाज हैं, केरला है, महाराष्ट्र है, गोवा है, देन इधर तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आंध्रा है. सो यहाँ पे जो लोग रहते हैं फॉर देयर लिविंग दे डू फिशिंग्स. सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे. देन ये ओशियन है, तो यहाँ पे नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन होंगे, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन होंगे, तो दिस ऑल्सो इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये भी पॉइंट क्लियर है. देन द थर्ड पॉइंट, एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. सो इट मीन्स कि अगर कोई भी एम्बेसीज हैं किसी भी कंट्रीज़ के, कंसल्टेंट्स हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी और कंट्री में प्रेजेंट है, देन दैट वुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री ओनली. लाइक अगर इंडिया के एम्बेसीज यूएस में प्रेजेंट हैं या रसिया में प्रेजेंट हैं या किसी और भी देश में प्रेजेंट है, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे. सो हियर एम्बेसीज मीन्स एंड diplomatic presence of a government of a particular country in other country, then that called embassies. जैसे कि आप लोगों ने फिल्मों में ही देखा होगा, एम्बेसीज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सिटीजन्स को, लाइक जो सिटीजन्स अब्रॉड रह रहे हैं, तो विथ visas and with their passports and other problems. And consultants are the same, like they are the extended bodies of the embassies, and those also helps the their citizens in other country. So ये point clear है. And the last point, these are the last 2 points which does not include in the domestic territory of a particular country. So like embassies, consultants and military establishment of a foreign country. Like if you are taking example, so इंडिया में अगर किसी और कंट्रीज़ के एम्बेसीज हैं, लाइक कंसल्टेंट्स हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैं, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड ना हो करके वो वहाँ के पर्टिकुलर कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे. लाइक रसिया का अगर एम्बेसीज है, तो जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि सारे कंट्री के एम्बेसीज सारे कंट्री में प्रेजेंट होते हैं. तो अगर रसिया के एम्बेसीज इंडिया में प्रेजेंट है, तो वो रसियन डोमेस्टिक टेरिटरी में
इंक्लूड होंगे वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे. एंड देन द लास्ट पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, ETC लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, तो वो भी इंक्लूड वहाँ के पर्टिकुलर कंट्री में नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर WHO प्रेजेंट है इंडिया में और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट. आई विल ट्राई कि मैं उन डाउट्स को दूर कर सकूं. एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe this channel. and और भी वीडियोस आती रहेंगी. आई विल ट्राई कि मैं जल्द से जल्द और भी वीडियो डालूँ.